Exercise 1.4, first chapter of 11th class. Find the union of each of the following pairs of set. In the previous video, we have discussed about the Venn diagrams, all the operations, right? So here we are using in this exercise. If you see first one, x is equal to 1, 3, 5, means x is containing 3 elements and y is containing 3 elements, and you have to find the union. So what do you mean by union? Union is presented by x union y. And what is the meaning of union? You have to write all the members and no member should be repeated. You can see 3 is common here, so we will not repeat this member. So 1, 3, 5, 2. 1 and 3 both are common there. Now in the second, questions are very easy. A union B. So what you will do? Anything common here? A is common, I think, only. So A will be written one time, and other members you will all write here. O, U and B and C. Right? Because this is given in a roster form, then it is very easy to calculate. But if you see the third part, A, x is such that x is a natural number and multiple of 3. So how will you convert into set builder form? If I write here natural number and multiple of 3, so 3, 6, 9, 12, and there is no limit. Okay, now B is what? X is a natural number less than 6. So less than 6 means 1, 2, 3, 4, 5. Right? So in this case, what will be the union here? Because these numbers starts from 3 and there is no 4 and 5 there. So I will write here 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This will I keep here, and 9, 12. After that I will write the all multiples. Right? Because 1, 2, 3, 4, 5 here. 3 is coming 2 times, so I will write 1 time, and all the series of A will be as it is. No change there. Right? Now in the next one, x is such that x is a natural number and x is greater than 1 and less than 6, less than equal to 6. What is the meaning of this? Which interval we are following here? Semi-closed. It is closed at 6 and open at 1. अभी हमारा कोई यूज नहीं है, but you should recall every time whenever you get the sums. So what is the meaning of this? Means we cannot take 1, so we will take 2, 3, 4, 5 and 6. So this is set A. Now set B. What is open on both sides? So it means we cannot take 6, 7 we will take, 8, 9, 10 we cannot take less than 10. And now we will see the union part. Anything common here? Nothing common. So it will be this one. I hope you have understood. कुछ बच्चे कहते हैं सर ये यहाँ पर भी आ गया, मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपने पीछे का नहीं पढ़ा हुआ वो नहीं आएगा. Now this is 11th class. Whatever you are studying at the back, so you have to keep in your memory. पता नहीं कहाँ पर क्या यूज हो जाए. Right? Now what is the union? You can see here 1, 2, 3 and 5 we do not present, because 5 means there is no element in B. If there is no element in B, so it means A union B will be 1, 2, 3 only, because 5 doesn't represent any type of element. Right? Now coming to question number 2. So you can see there A is having 2 elements AB, B is having ABC. So you have to check whether A is a subset of B first. And what is the meaning of A subset? A is the subset of B. So we will write here, yes, A is the subset of B. Reason is because each element of A exists in B. Right? You can see AB, and this is the definition of subset. And what is A union B here? A union B, say you will write each element of both side
and common element will be written one time. So this is ABC, right? Okay. Now the next question is, let A and B be two sets and such that A is a set of B, subset of B. If A is a subset of B, suppose X is the element there. I am taking X element. If X belongs to A, then X belongs to B also, right? So if X belongs to A and X belongs to B, then what will be the A union B here? A union B means, okay, how many elements are in A? Suppose I am saying that there is two elements, for example, and in B, and B is containing all elements of A also. So what is the meaning of this? If I suppose wants the union of this A union B, so I will get what? B only. Reason? Because B contains all the elements of A. So we can give with the help of example also. So A union B will be B only, because A is already existing there, right? Now next, A is equal to 1, 2, 3, 4. I can tell you one thing, one more example we can take. Suppose A is containing 1, 2, right? And B is containing 1, 2, 3, 4. So suppose I am saying what is A union B? A is a subset of B. Yes, one or two element here. So means complete elements of A and B. And what is A union B? 1, 2, 3, 4. Because यही हमारे लिए यूनियन का काम कर जाएगा B, क्योंकि ये तो ऑलरेडी वहां पर है. तो इस यही सेम चीज यहाँ पर है कि A यूनियन B में सिर्फ B लिख दो, क्योंकि A तो आपने सबसेट बोल ही दिया है. अगर A डिसजॉइंट सेट होता तो फिर यहाँ नहीं होता. फिर हमें क्या करना पड़ता? फिर हमें A प्लस B करना पड़ता, एलिमेंट ऑफ A एंड एलिमेंट ऑफ B. बट यहाँ पर ऐसा है नहीं, क्योंकि सबसेट है. इसका मतलब कॉमन एलिमेंट है ही है सारे. A के सारे एलिमेंट B के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये B हो जाएगा, राइट? नाउ दिस इज A का देखो सेट, चार एलिमेंट, इसमें 3, 4, 5, 6 एलिमेंट दे रखे हैं. करना बिल्कुल सिंपल है. हमने अभी पिछली वीडियो में भी किया था जब हमने वेन डायग्राम एक्सप्लेन किया था. व्हाट इज A यूनियन B? मींस व्हाट इज कॉमन in both 3, 4. We will take one time this common part, and other numbers you will write. All elements are here of A and B. A union C. A union C, there is nothing common, so you can write all elements without hesitation. B union C, so it will be what? 3, 4, 5, 6. 5, 6 is also here. No need to write again of C. So we will take 7 and 8 only. What is A union B union C? Means all the elements of A, B, C. So we will write from here 1, 2, 3, 4 for A. For B 3, 4, 5, 6. 3, 4 already we have written, so we will write 5, 6. And for C 5, 6 already we have written, 7 and 8. Similarly, you can do with A union B union D and B. This one I think you should do yourself, right? Now I am coming to the question number 5. Find the intersection of each pairs of sets of question number 1 above. Question number 1. If question number 1 you see there is x is equal to 1, 3, 5 and 1, 2, 3, then you will choose the common part there. What is common in that? So I think this sum also can be done by students. So please try to these sums yourself. And you can see the sixth question also. Sixth question is 6th and 4th. Both are same. Nothing is changed, right? Everything will be same there. I can do some parts of 6th, so that you know some operations are there which we were using. So it will give you more clarity. So 6th, A set, B set, C and D. 4 sets are there, and we will try to find A intersection B in this. So if you see, what is A intersection B? What is common in both? You can see 7, 9 and 11. So we will write here 7, 9 and 11. Only in one line.
one side, one scene, and your answer is there, right? Now B intersection C, 11 and 13. We will write here 11 and 13. Now intersection of A, C and D means we will check the common of A, C and D. मतलब A, C और D में तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में हो. अगर आप देखते हो तीनों में कोई नंबर नहीं बैठ पा रहा, ये 11 पर स्टॉप हो जाता है नंबर, और यहाँ पर 11 से स्टार्ट है, 11 और इसमें कॉमन है बट इसमें नहीं है, 15 और यहाँ कॉमन है बट नहीं है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, नथिंग इज कॉमन. ए इंटरसेक्शन सी क्या बनता है, ए इंटरसेक्शन सी में सिर्फ 11 कॉमन है, तो वी विल राइट ए सिंगलटन सेट, वी कॉल इट सिंगलटन सेट. बी इंटरसेक्शन डी, कुछ भी कॉमन नहीं है, बी और सी में, बी और डी में सॉरी, बी और डी में कुछ कॉमन नहीं है, 15 और 17 है या 13, 11, 9, 7. ए इंटरसेक्शन, सबसे पहले ए में कितने एलिमेंट हैं, जब भी ऐसे तीन कंपोजिशन मिलते हैं तो बेटर है कि आप ऐसे बना लो, और ब्रैकेट बी यूनियन सी, वेयर इज बी यूनियन सी, सो व्हाट वी विल राइट हियर, 7, 9, 11, 13 एंड 15. अब यहाँ से देख लो आपको क्या कॉमन मिल रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन है दोनों सेट्स में. तो एक तो मुझे 9 मिलता है, 7 और 9 और 11, तो आंसर हो जाएगा 7, 9 and 11, right? Now in this case A intersection B, what is A intersection B? We will write here 7, 9 and 11. And what is B union C? B union C, B union C will be 7, 9, 11, 13 and 15. And you have to again find the union of this. So union says all element, so 7, 9 और 11, ये तो मेरे पास तीनों यहाँ पर भी हैं, और 13 और 15 में है. We are writing it, बड़े सिंपल से हैं. A यूनियन D, what is A यूनियन D? So दोनों डिसजॉइंट है, मतलब सारे एलिमेंट्स ही लिखने पड़ेंगे, कुछ कॉमन नहीं है. इंटरसेक्शन B यूनियन C, B और C में कुछ कॉमन है, क्या है वो, 7, 9, 11, 13 एंड 15. अब मुझे इसमें देखना है क्या कॉमन आता है. कॉमन है क्योंकि इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, कॉमन आ जाता है, 11 कॉमन है, बिल्कुल है, 15 कॉमन है एंड 7 कॉमन है. 7, 9, 7, 9, 11, 11, 15 एंड 15, चार एलिमेंट कॉमन आते हैं, तो आप चारों लिख दोगे यहाँ पर, 7, 9, 11 एंड 15. सो ये क्वेश्चन नंबर 6 था. अब ऐसे ही हम 7th पे आते हैं. 7th क्वेश्चन में बात करते हैं. 7th क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है. अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या करेगी वो देखते हैं. सो A is X is such that X is a natural number. Again, you know, all sets are in set builder form. What we will do here? करते हैं स्टार्ट. X देखो पहला सेट, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, सो क्या है X, एक नेचुरल नंबर है, तो क्या है नेचुरल नंबर्स, 1 to infinity. इवन B किसको दिखाता है, सारे इवन नेचुरल नंबर्स जो डिविजिबल होंगे 2 से, राइट. दूसरा आ जाता है, दूसरा क्या दिखाता है, ओड नेचुरल नंबर्स. तो ओड क्या हो जाते हैं, 1, 3 है ना, 5, 7. डी क्या दिखाता है, प्राइम नंबर दिखाता है. प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, ध्यान रखना चाहिए. 7, 11, 13 ऐसे चलेगा, है सभी इनफाइनाइट, सबकी कोई लिमिट नहीं है. अब क्वेश्चन आता है ए इंटरसेक्शन बी क्या हो सकता है. अगर ए इंटरसेक्शन बी को लेने चलते हैं तो क्या मिलेगा, इसको उठाएंगे, ये वाली. अब ध्यान रखना, आपको सिर्फ इनसे बातें करनी है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म ही है जो आपको सही वैल्यू दे पाएगी. ए और बी का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आप देखोगे तो जितने भी 1, 2, 3, 4 के अंदर सारे इवन नंबर आएंगे. अगर मुझे इंटरसेक्शन देना है तो इसका मतलब है कॉमन क्या रहने वाला है दोनों में. ये पक्का है कि उसमें 2, 4, 6, 8 मतलब सभी ये कॉमन आने वाले हैं. इसका मतलब मैं अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो x is such that x is an even natural number. मतलब जो सेट B है वही इसका इंटरसेक्शन माना जाएगा, क्योंकि वही इसके अंदर कॉमन है, बाकी तो कोई कॉमन नहीं है.
अब ए इंटरसेक्शन सी में आते हैं। ए इंटरसेक्शन सी, अगर एक चीज और भी है क्लास बच्चों, इसमें ध्यान रखना, ए इन सबका, इन जितने भी सेट है, इन सबका यूनिवर्सल सेट का जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि ए के पास ये सारे जो बी सी डी है ये ए के सबसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। और जब सबसेट्स की कैटेगरी में आते हैं तो एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि अगर ए बी का सबसेट है, सॉरी बी ए का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा बी ही देगा, क्योंकि सिर्फ बी ही कॉमन हो सकता है उसके अंदर, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में है, ए के सारे एलिमेंट नहीं है। तो बी के सारे एलिमेंट ए में है तो कॉमन पार्ट सिर्फ बी तो रहा। तो इसलिए जो है, जो सबसेट्स हैं वो अल्टीमेटली यूनियन इंटरसेक्शन वाले केस में वही आंसर बन जाता है। अब ए इंटरसेक्शन सी क्या है, सी में देखो सारे एलिमेंट आएंगे तो हम क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन सी में 1 3 5 7 सारे एलिमेंट सी के होंगे, तो हम सी की रजिस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म लिखा सकते हैं। x इज सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये बात सुनना है। डी के साथ भी ऐसे बिहेवियर आएगा, यहाँ पर डी के आ जाएंगे। अगर मुझे बी इंटरसेक्शन सी निकालना हो, अब बी इंटरसेक्शन सी कैसे निकलेगा, बी इंटरसेक्शन सी में अगर आप देखते हैं तो कुछ कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये एक ऑड नंबर को दिखाता है, वो इवन नंबर को दिखाता है, तो क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं हो सकता। इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स कभी भी कॉमन नहीं होते, वो 2 से डिविजिबल है और वो 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही फिर हम आगे का भी कर सकते हैं। बी इंटरसेक्शन डी पूछा है उसने, बी इंटरसेक्शन डी, अगर बी इंटरसेक्शन डी निकालना पड़ गया, अब बी कहाँ पर है अपना, ये रहा। बी और डी में अगर आप देखते हो ये इवन को प्रेजेंट करता है, ये प्राइम को प्रेजेंट करता है। प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही नंबर है जो इवन होता है, वो है 2, बाकी सब ऑड होते हैं। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ क्या कॉमन आने वाला है, सिर्फ 2 नंबर है जो कॉमन आएगा, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला। राइट, तो इसके अंदर ये करेंगे। सी इंटरसेक्शन डी में अगर मैं इसकी बात करता हूँ, सी इंटरसेक्शन डी में, सी इंटरसेक्शन डी में अगर उठाएं तो देख रहे हो आप 3 कॉमन आ रहा है, देन 5 आएगा, देन 7, देन 11, क्योंकि इसके अंदर तो सारे 13, क्योंकि सब आते हैं 13। तो इसमें क्या चीज देखने को मिली आपको, पैटर्न देखो। इसमें आप लिख सकते हो क्या, x is such that x is an what, prime number, प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर हैं, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट 2 को छोड़कर, क्योंकि 2 यहां पर नहीं है, बाकी सब प्राइम नंबर कॉमन आने वाले हैं जो ऑड नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं एक्सेप्ट 2, वो सभी ऑड नेचुरल नंबर भी हैं, क्योंकि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सब ऑड होते हैं। राइट, तो ये था इस 7th क्वेश्चन की डिटेल्स। आई होप ये एक एक बारीकी से समझना है इन चीज़ों को, तभी ये चीज़ें क्लियर होंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या, कि ए इंटरसेक्शन बी करने बैठेंगे, ये 2 सेट्स का हम इंटरसेक्शन करते हैं तो वो 5 आना चाहिए, मतलब नथिंग शुड बी कॉमन। कॉमन आ गया तो वो डिसजॉइंट किस बात के फिर। राइट, नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस इज 1A सेट, इसको B मान लेते हैं और इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आप देखोगे क्लोज इंटरवल है, तो क्या मिलेगा, 4 5 एंड 6। अब आप देखो इसमें कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, 4 कॉमन आ गया, तो इसका मतलब क्या, A इंटरसेक्शन B क्या आ गया, एक एलिमेंट लेकर आया, इट मीन्स क्या, नॉट अ डिसजॉइंट सेट्स, ये डिसजॉइंट सेट्स की कैटेगरी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। इसमें आ जाते हैं, अगर ये A है और सपोज मैंने बोला ये B है, तो एनीथिंग कॉमन हियर, इसमें भी कॉमन आ गया भाई, E आ रहा है, तो क्या रह गया ये, तो A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5। जब 5 नहीं है तो इट मीन्स क्या, ये डिसजॉइंट नहीं रहेगा। इसमें आते हैं, अगर ये क्या कहता है, x एक इवन नंबर है, मतलब A, अगर मैं A को प्रेजेंट करता हूँ रोस्टर फॉर्म में तो 2 4 6 8 देगा, अभी बिल्कुल आया था ये सब। और ये क्या देने वाला है, 1 3 5।
आप देखोगे इसमें कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, ये सीरीज दोनों ही अलग अलग है। तो व्हाट इज इट, ए इंटरसेक्शन बी इज 5, मतलब ये एक डिसजॉइंट सेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. So question number 9 and 10 I have written both here. Question number 9, 4 sets are here and you have to find a minus b, and we know that what is a minus b. सिर्फ a के एलिमेंट लेने हैं, a minus b मतलब b के एलिमेंट हटा देने हैं। b के कौन से एलिमेंट हटाने हैं, जो a में हैं। तो अब चेक करना है जरा, a ये रहा हमारा, b ये रहा, क्या b और a में कुछ कॉमन है अपने पास, वो चेक करते हैं। देखो 12 कॉमन आ रहा है, ठीक है, आई एम मेकिंग 12 कॉमन एंड एनीथिंग एल्स, बट 3 6 इज नॉट हेयर, 9 इज नॉट हेयर, 15 इज नॉट हेयर, 18 नहीं है, 21 नहीं है, सिर्फ क्या है 12 नहीं है। 12 कॉमन आ गया, तो इसका मतलब है सिर्फ 12 हम नहीं लेंगे 6 में, मतलब a का, बाकी सारे एलिमेंट ले लेंगे, क्योंकि वो एलिमेंट नहीं लेना है जो b में हो, क्योंकि वो b का क्यों हो गया भाई। माइनस क्या कहता है, माइनस ये कहता है कि भाई a में सिर्फ मैं वो एलिमेंट लूंगा कि जो मेरे हैं, जो किसी और के भी हैं वो एलिमेंट मेरे तो हैं, लेकिन वो किसी और के भी हैं तो वो मेरे नहीं है पर्सनल। तो a माइनस भी सिर्फ अपने पर्सनल एलिमेंट्स की बात कर रहा है, जो उसके ही हैं, क्योंकि वो a ही उसका लैंडलॉर्ड होना चाहिए। a माइनस सी में चेक करेंगे, जिसमें a ही इसका लैंडलॉर्ड होना चाहिए। अगर आप बात करते हैं तो 12 अगेन फिर कॉमन आ गया, 6 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर एक कनेक्शन सेट कर लेते हैं, एक ये आ गया, एक ये आ जाता है, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। तो मतलब क्या, a में कौन कौन से एलिमेंट गायब हो जाएंगे। a में सिर्फ कौन से एलिमेंट लिखोगे आप, a में लिखे जाएंगे 3, 9, 15, 18 एंड 21, क्योंकि a माइनस सी की कैटेगरी में सिर्फ a के वही एलिमेंट लिखेंगे जो c उनका ऑनर नहीं होना चाहिए। अब a और d में आ जाते हैं, a और d में देखें तो 15 कॉमन है, ठीक है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या करेंगे हम, 15 को छोड़कर बाकी सब लिख दो आप, 3 लिख दोगे, 6 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं और 21 लिख सकते हैं, अगर d से कंपैरिजन करते हैं। उल्टा करते हैं, b में से a अगर माइनस करना है तो आपको पता है सिर्फ 12 ही कॉमन था इन दोनों में, तो इसका मतलब है b, अब इस पर b ओनर है तो b अपनी ओनरशिप दिखाएगा इधर। b कहेगा कि मैं 4 8 लिख सकता हूँ, 16 लिख सकता हूँ, 20 लिख सकता हूँ, लेकिन 12 नहीं लिख सकता, क्योंकि 12 में का मैं अकेले का ओनर नहीं हूँ, a भी उसका ओनर है, ठीक है, c भी उसका ओनर है देखा जाए तो। c माइनस a में आते हैं, c माइनस a में हम कौन से एलिमेंट देंगे, 2 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 8 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, 14 दे सकते हैं एंड 16 दे सकते हैं, क्योंकि c उसका ओनर है बस। d माइनस a में आ जाते हैं, d माइनस a में अगर आप बात करते हैं तो सिर्फ 15 कॉमन आ जाता है, बाकी 5, 10 और 20 अगर मैं देखता हूं तो सिर्फ d है जो उसका ओनर है, d और a में। ओनर वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेरा मीनिंग क्या है। b माइनस सी क्या है, b और c, अगर b और c में देखते हैं तो एक बार और हाईलाइट करेंगे इसको कि मेरे पास 4 मुझे हटाना पड़ेगा, सॉरी इसमें देख लेते हैं क्योंकि b से हटाना है, 4 हटाना है, 8 है यहाँ पर, 12 भी है यहाँ पर, 16 है यहाँ पर, तो इसका मतलब है इसके सारे हट जाएंगे क्योंकि ये इसके भी ओनर है, यानी c भी इन चारों का ओनर है। तो b अकेला सिर्फ किसका ओनर है, सिर्फ 20 है जिसका ओनर अकेला भी है, b और c में, तो इट मींस b माइनस सी 20 आएगा, राइट। तो ये बहुत कॉन्सेप्ट इजी है, बस थोड़ा सा समझना है सेट्स के साथ, कौन से एलिमिनेट करना है, किसका एलिमिनेट करना है। अगर b का निकाल रहे हो तो c के सारे एलिमिनेट करो, सिर्फ b के लेंगे, और अगर a माइनस बी कर रहे हो तो a का लिया जाएगा, राइट। इसमें आते हैं, ये क्या है x माइनस वाई, फिर अगेन सेम थिंग, यहाँ नंबर की जगह अल्फाबेट्स आ गए। x माइनस वाई में क्या करेंगे, सिर्फ x के एलिमेंट लेंगे जो y में ना हो। अब y में और इसमें 2 ही सेट है, कॉमन चेक कर लेते हैं पहले। अब देखो एक तो ये कॉमन है और d कॉमन है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो x माइनस वाई करेंगे तो x के एलिमेंट लिखो, सिर्फ कौन कौन से आएंगे, a और c आएंगे, b और d नहीं लेंगे। जब y माइनस x लेंगे तो y के एलिमेंट लिए जाएंगे, x के हटा देंगे,
अगर दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए, जो मैंने हाईलाइट किया है वो उनका इंटरसेक्शन ही तो है, वो दिखा दिया, बड़ा इजी है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्लास, इस क्वेश्चन को समझने के लिए you have to understand what are real numbers and what are rational numbers. मैं सबसे पहले यहाँ बात करता हूँ, अगर मैं रियल नंबर को दिखाना चाहता हूँ, रियल नंबर्स है क्या। रियल नंबर्स, देखिए रियल नंबर्स में क्या क्या आएगा, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, राइट, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, तो मीन्स हमें हमारे पास कुछ बचा ही नहीं जो इसमें ना है। तो अगर आप देखते हैं इसमें इस कैटेगरी, ओके, अब एक चीज और आती है, ये जितने भी नंबर्स हैं ये, और मैं इसको एक अलग तरह से प्रेजेंट करूं तो इसको मैं एक वेन डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि सपोज रैशनल नंबर इज अ यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर पता है आपको क्या क्या होने वाला है, इसके अंदर सारे इंटीजर्स आएंगे, राइट, सारे होल नंबर्स आएंगे, सभी आएंगे, मतलब इसके अंदर इंटीजर्स आ गए, नेचुरल नंबर सॉरी, इसके अंदर आपके होल नंबर्स आ गए, इंटीजर्स आ गए, राइट, फ्रैक्शंस आ गए, मतलब सब कुछ आ गया रैशनल नंबर के अंदर। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये अपने आप में ये पूरा एक सेट है, राइट। और सिंपल सी बात करें तो रियल नंबर को मैं दो अगर टर्म्स में कैटेगराइज करूं तो सिंपल सी बात निकल के ये आती है कि रियल नंबर के दो पार्ट हैं, एक रैशनल और इरेशनल। फिर रैशनल्स के डिविजन्स हैं बहुत सारे, राइट। तो यहां पर यही है, अगर R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर और R में से अगर मैं Q को माइनस करूं, मतलब ये R है और ये Q है, और मुझे किसको माइनस करना है, इरेशनल नंबर को। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इरेशनल नंबर हियर? इरेशनल नंबर्स को हम जनरली किससे प्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर, जो हम प्रेजेंटेशन देते हैं इरेशनल नंबर की, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है इरेशनल नंबर्स का क्या प्रेजेंटेशन है। इरेशनल नंबर का जो प्रेजेंटेशन है वो है आपका T, याद होना चाहिए कि हम जनरली T से डिनोट कर देते हैं। तो इसका मतलब है जब R में से मैं Q को माइनस करूंगा, मतलब R में से अगर Q को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, T, यस और नो। तो T इज व्हाट, इरेशनल नंबर्स। So for this what I have to do, I will define here कि real numbers are the combination of rational and irrational numbers, then R minus Q will be equal to T, where T is an irrational numbers, right. So it was, again we should know about the real number first, then only we can find the answer in this. Now in the 12th question you have to just see true or false, whether they are disjoint sets or not. Disjoint sets means if the intersection is 5, means nothing is common. So I think you can do this sum 12th, and in the next exercise also we will use the same Venn diagram concept, but that is related to complement. So we will do that exercise in the next video. So thank you so much for watching this video.